हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी गाइड। गाइस, वीडियो का टाइटल से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम इंडियन पॉलिटी करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। सो गाइस, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एफकेट ना, तो आपको इंडियन पॉलिटी के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको डेली थोड़ा टाइम निकालना है एमसीक्यूज की वीडियो देखने के लिए। और अगर आप इंडियन पॉलिटी कर चुके हैं तो देन चेक योर नॉलेज थ्रू दिस वीडियो। And guys, in this series, I will cover more than 1000 questions. For that, please subscribe our channel and press the bell icon to get the notification of those videos. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। First question is, the cabinet mission to India was headed by option A, Stanford Cripps, B, A.B. Alexander, C, Lord P. Lawrence, D. Herb Gaitskell. The answer to this question is option C, that is Lord P. Lawrence. Next we have the Constitution of India was adopted by A. Governor General, B. British Parliament, C. Constituent Assembly, and D. Parliament of India. The answer to this question is option C, that is Constituent Assembly. Next we have the Constituent Assembly for Undivided India first met on A. 6 December 1946, B. 9th December 1946, C. 20th Feb 1947, or D. 3rd June 1947. The answer is 9th December 1946. So next we have, who among the following was the constitutional advisor to Constituent Assembly of India? A. B. N. Rao, B. B. R. Ambedkar, C. K. M. Munshi, D. M. N. Roy. Answer is A. B. N. Rao. Next we have, who was the chairman of drafting committee? A. Rajendra Prasad, B. Tej Bahadur Sapru, C. Rajgopalacharya, and D. B. R. Ambedkar. Answer is D. B. R. Ambedkar. Next we have, who was the president of Constituent Assembly? Nehru, Rajendra Prasad, Ambedkar और गांधी जी। गांधी जी तो किसी भी एंगल से आ नहीं सकते क्योंकि गांधी जी इंडियन पॉलिटी में कोई रोल नहीं है। गांधी जी आप भूल ही जाओ, गांधी जी को आपको बिल्कुल भी किसी भी एंगल से नहीं है कहीं भी। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, राजेंद्र प्रसाद. Next we have, the demand for Constituent Assembly was put forward by the National Congress in 1936 session held at. जब डिमांड पुट करी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जिस सेशन में, वो सेशन कहाँ हुआ था? ए. कानपुर, बी. आगरा, सी. लखनऊ और डी. लाहौर. आंसर इज सी, लखनऊ. नेक्स्ट वी हैव, the most profound influence on the drafting of the Indian Constitution was exercised by the A. US Constitution, B. British Constitution, C. Government of India Act 1935 or D. French Constitution. Answer is C. Government of India Act 1935. Next we have, match the following. In this, you have to match the committees of Constituent Assembly to their chairman. So, A, we have Drafting Committee, B, we have Committee on Fundamental Rights, C, Union Constitution Committee, and D, Working Committee. Chairman साहब वल्लभ भाई पटेल, second जवाहरलाल नेहरू, third कन्हैयालाल मुंशी, and D का fourth B. R. अम्बेडकर. ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे फोर्थ बी. आर. अम्बेडकर. कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल. एंड सी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू. एंड डी, वर्किंग कमेटी के थे चेयरमैन कन्हैयालाल मुंशी. द आंसर इज डी. Next we have, 10th is, which of the following acts formally introduced the principle of elections for the first time?
A. Indian Council Act 1909, B. Government of India Act 1990, C. Pitt's India Act 1784 or D. Government of India Act 1935. Answer is A. Indian Council Act 1909. Now 11th we have which of the following is wrongly matched. A. 9 दिसंबर 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी. बी. 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था. सी. 24 जैन 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है फाइनली साइन किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स से. डी. 26 जैन 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था. सो इनमें से कौन सा रॉन्ग है? सो द आंसर इज ए. 9 दिसंबर 1947 क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 गाइस. सी 1947 नहीं 1946 को हुई थी. सो आंसर इज ए. नेक्स्ट वी हैव द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड्स बाय A. Charter Act 1833, B. Government of India Act 1858, C. Indian Council Act 1861 or D. None of the above. Answer is Government of India Act 1858, that is B option. Next we have consider the following statement. The Indian Constitution is unwritten, written or largely based on गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सो इन तीनों में से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? एवरीबडी नोज कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, अनरिटन नहीं है. सो ये ऑप्शन नहीं होगा. सो द करेक्ट आंसर्स आर ऑप्शन बी कि हाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है एंड ऑप्शन सी कि लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सो ऑप्शन बी and C are correct. Next we have the Indian Constitution establishes a secular state, meaning the state treats all religions equally, freedom of faith and worship is allowed, the state makes no discrimination on the basis of religion in the matters of employment, and D. all of the above. Answer is D. all of the above. Next we have which of the following was adopted by modern dynasty in the emblem of Government of India? A. 4 lions, B. wheel, C. horse or D. word Satyamev Jayate. So 4 lions were adopted for the emblem of Government of India. गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस आने में लगे हैं, बाकी टॉपिक्स पे क्वेश्चंस क्यों नहीं आ रहे, लाइक प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी. सो वेट करिए, बाकी वीडियोस में वो भी क्वेश्चंस आएंगे. हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं तो क्वेश्चन जो है उसी के हिसाब से आएंगे. बाकी वीडियोज़ में आपको उन टॉपिक्स पे भी क्वेश्चंस मिलेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय Charter Act 1813, Charter Act 1833, Government of India Act 1858 or Government of India Act 1935. So the correct answer is option C, Government of India Act 1858. जब क्राउन ने जो है सारी पावर्स अपने अंडर ले ली थी और वाइस रॉय बनाए गए थे, गवर्नर जनरल को वाइस रॉय बना दिया गया था और उसके साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया गया था. जो हेड थे, जो 15 मेंबर काउंसिल बनाई गई थी उस एक्ट के थ्रू, उसके हेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे. सो द आंसर इज सी. नेक्स्ट वी हैव हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ऑब्वियसली B.R. Ambedkar was the father of Indian Constitution. Next we have who was the PM of England during independence. जब हमें आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी, उस टाइम इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? A. एटली, B. जॉन शो, C. जॉर्ज वॉशिंगटन और D. A.O. ह्यूम. आंसर इज एटली, ऑप्शन A.
Next we have who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution. A. Jawaharlal Nehru, B. Gandhi ji, C. B.N. Rao or D. M.N. Rao. Answer is A. Jawaharlal Nehru. Next we have match the following. So in this we have to match some acts to the कि हाँ उनके फीचर्स से हमें मैच करना है. फर्स्ट वी हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या हुआ था? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? नो. सेपरेट इलेक्टोरेट? नो. डायरकी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी. सो एक का जो है करेक्ट वो है डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी. नेक्स्ट वी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ था? उसका जो मेन फीचर था वो था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. नेक्स्ट मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट में क्या था? उसमें था सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया था मुस्लिम्स के लिए. इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट कैबिनेट मिशन प्लान किस लिए लाया गया था? उससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी. 20 का है ऑप्शन डी. नेक्स्ट वी हैव the amendment procedure laid down in the constitution of India was borrowed from. जो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. द आंसर इज सी, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट वी हैव द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड इन A. बॉम्बे, B. कैलकाता, C. लाहौर और D. न्यू दिल्ली. आंसर इज D. न्यू दिल्ली. नेक्स्ट वी हैव हु वॉज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? A. B.R. अम्बेडकर, B. J.B. कृपलानी, C. जवाहरलाल नेहरू और D. गांधी जी. ये हमने भी मैच द फॉलोइंग में भी किया था गाइस. यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट वी हैव हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ए. सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी. आचार्य J.B. कृपलानी, सी. जयप्रकाश नारायण और D. K.M. मुंशी. आंसर इज सी, जयप्रकाश नारायण. Next we have who was the foreign minister of free India? A. जवाहरलाल नेहरू, B. गुलजारी लाल नंदा, C. लाल बहादुर शास्त्री और D. जॉन मथाई. आंसर इज A. जवाहरलाल नेहरू. Next we have which among the following are the features of federal state? फेडरल स्टेट के फीचर्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, द पावर ऑफ द central and state governments are clearly laid down. Second, it has a unwritten constitution. Select the answer using the codes given below. 1, second only, both 1 and 2 or neither 1 nor 2. Correct answer is A. That is the powers of central and state governments are clearly laid down. Now next we have 27th number. Which one among the following is a fundamental duty of citizens under the Constitution of India? A. To provide friendly cooperation to the people of neighboring countries. B. To protect monuments of national importance. C. To defend the country and render national service when called upon to do so. Or D. To know more and more about the history of India. Clearly A तो हमारा होगा नहीं. टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जी नहीं, ये भी नहीं है. और डी टू नो मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी नहीं है. बचा कौन सा? ऑप्शन सी. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रोमulgated ऑन 26 Jan 1950 बिकॉज दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे सिंस 1929. इट वॉज द विश ऑफ फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. The British did not want to leave India earlier than this date. Or D.
it was an auspicious day. So the correct option is A. This day was being celebrated as the Independence Day since 1929. Next we have, which one of the following made the Indian Constitution Indian legislature bicameral? The option A, Indian Council Act 1909, B, Government of India Act 1919, or C, Government of India Act 1935, or D, Indian Independence Act 1947. So the correct option is D, B, Government of India Act 1919. Next we have, which of the following was not one of the features of Government of India Act 1935? जो Government of India Act 1935 उसके फीचर्स जो थे, इसमें से कौन सा उसका फीचर नहीं है? ए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डेफिनेटली उसका फीचर था. डायरेक्ट सेंटर, यस उसका फीचर था. आप कहें कि डायरेक्ट तो 1919 का था, जी हाँ था, बट 1935 में डायरेक्ट जो है सिर्फ सेंटर पर ला दी गई थी. सो डायरेक्ट ऑफ सेंटर इज द करेक्ट ऑप्शन. सी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, और डी, ऑल इंडिया फेडरेशन. सो फेडरेशन भी था उसका फीचर. जो उसका फीचर नहीं था वो था बाइकैमरल लेजिस्लेचर. सो इसमें पूछा ही कौन सा फीचर नहीं है, तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, डेट इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर. Next we have, which of the following was not of the feature of Government of India Act 1935? ये हम पहले ही कर चुके हैं guys. I am so sorry, क्वेश्चन रिपीट हो गया है. आंसर was C. Next we have, what was the main stipulation of the Government of India Act 1935? See, stipulation means demand. ये मैंने आपको वोकेबलरी में जो वाला वोकेबलरी वाला सेशन जिसने देखा है, सो उन्हें पता होगा कि स्टिपुलेशन का मीन होता है डिमांड करना. सो मेन डिमांड जो थी वो थी ए, अ फेडरेशन वॉज सजेस्टेड, बी, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज रिकमेंडेड, सी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस गारंटेड, और डी, डायरेक्टली वॉज मेड एप्लीकेबल एज प्रोविंशियल लेवल. सो द ऑप्शन इज ए, अ फेडरेशन वॉज सजेस्टेड. Next we have, the Constitution of India borrowed the scheme of Indian Federation from the Constitution of A, USA, B, Canada, C, Ireland, or D, UK. So the correct option is B, that is Canada. Now 34th, which of the following is the feature common to both the Indian Federation and the American Federation? A, a single citizenship, B, dual judiciary, C, 3 lists in the constitution, or D, a federal supreme court to interpret the constitution. So single citizenship नहीं है guys, ये ब्रिटिश से लिया गया था. dual judiciary भी नहीं है, ये इंडिया में है ही नहीं dual judiciary का चीज़. 3 लिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जी नहीं, ये भी नहीं लिया गया था. सो डी जो है वो कॉमन फीचर है, अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरफेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो नेक्स्ट वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट? ए, फंडामेंटल राइट्स, बी, 9th शेड्यूल, सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और डी, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ऑब्वियसली द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि इसी में ही है लिखा है कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, बी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सी, फेडरल गवर्नमेंट, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट कि ये बेसिक फीचर बिल्कुल नहीं है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट वी हैव, मैच द फॉलोइंग. इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स के जो हैं फीचर्स जो हैं आपको उनके सोर्सेज से उन्हें मैच करना है. सो रूल ऑफ लॉ, DPSP, कॉन्करेंट लिस्ट, और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी. सो गाइज DPSP हमारा लिया गया था आयरिश से. सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द एमरजेंसी जो था
वो हमारा लिया गया था कहाँ से? यस, जर्मनी से। और रूल ऑफ लॉ हमारा लिया गया था, दैट इज़ फोर्थ, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव which of the following features and their sources are wrongly matched? Judicial review, British practice, concurrent list, Australian constitution, DPSP, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने पहले ही देखा है मैच द फॉलोइंग में कि DPSP आयरिश से ली गई है, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से। सो बचा कौन सा? जुडिशियल रिव्यू, गलत है हमारा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया है। सो नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी गाइज again the question is repeated here. So next we have the Constitution of India is designed to work as unitary government, A in normal times, B in times of emergency, C when the parliament so desires, और D at the will of president. Guys हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो यूनिटरी नहीं है, क्वासी फेडरल है। मतलब फेडरल भी है, यूनिटरी भी है, पर यूनिटरी कब है? यूनिटरी सिर्फ एमरजेंसी के टाइम पर होता है हमारा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इन टाइम्स ऑफ एमरजेंसी। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट रिजेंबल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सी फंडामेंटल राइट्स, और डी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Next we have which of the following statement is correct? So A, preamble of the constitution is a part of constitution and can be amended under article 368. ये बिल्कुल गलत है। Next we have preamble of the constitution is not a part of constitution and cannot be amended. जी नहीं guys, ये भी गलत है, amend हो सकता है but कोई certain conditions होती हैं। Next we have option D, preamble can be amended by parliament simply by an objective resolution. बिल्कुल गलत है ये। So option C is correct, that is preamble is the part of basic structure of the constitution and can be amended only if no change in the basic structure is made. So next we have the word socialist, secular and unity and integrity of the nation were added to our constitution by A, 42nd amendment of the constitution, B, 44th amendment, C, 46th amendment, or D, none of the above. Answer is A, 42nd amendment, which is also known as the mini constitution. Next we have the correct nomenclature of India according to the preamble is Sovereign Secular Democratic Republic, B, Sovereign Democratic Republic, C, Sovereign Socialist Secular Democratic Republic, or D, Sovereign Secular Socialist Democracy. So option C is correct here. Next we have India is a democratic republic because there is an independence of judiciary. The head of the state is elected by the people. C, there is distribution of powers between the center or states, or D, there is a parliamentary supremacy. Answer is the head of the state is elected by the people. क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, हम लोग खुद कॉमन पीपल चूज़ करते हैं हमारा हेड कौन होगा, इसलिए उसे ही डेमोक्रेसी बोलते हैं गाइस. दैट इज़ वाई इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. Next we have who among the following moved the objective resolution which formed tile basis of the preamble of the Constitution of India in the Constituent Assembly on December 13, 1946? A. Dr. B.R. Ambedkar, B. Rajendra Prasad, C. Sardar Vallabhbhai Patel, or D. Jawaharlal Nehru. Answer is D. Pandit Jawaharlal Nehru. नेक्स्ट वी हैव अगेन द मैच द फॉलोइंग. इसमें प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आपको उनके सोर्स से मैच करना है अगेन. सो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहाँ से लिया गया था, हमने ये पहली क्वेश्चन देखा है,
ये लिया गया था साउथ अफ्रीका से। DPSP हमने कहाँ से लिया है, हमने मैच द फॉलोइंग में देखा था, जर्मनी से। इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट हमने कहाँ से लिए है, सॉरी DPSP जो है हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और इमरजेंसी हमारा जर्मनी से लिया है हमने। और यूनियन स्टेट रिलेशनशिप जो है कनाडा से लिए है। सो फॉर 47th द करेक्ट ऑप्शन इज B. Next we have the Constitution of India is republican because it provides for an elected parliament. B. Provides for adult franchise. C. Contains a Bill of Rights. D. Has no hereditary elements. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट गाइस, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी जो है हेड बन सकता है। ऐसा नहीं है कि जो अभी पीएम है उसका बेटा या फिर कोई रिलेटिव पीएम बनेगा नेक्स्ट में, कोई हेरिडिटरी एलिमेंट नहीं है, इसलिए जो है इंडिया इज़ ए रिपब्लिक नेशन। नेक्स्ट वी हैव इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम ए इंग्लैंड, बी USA, C Canada और D France. Answer A is correct. Option A is correct, England. Next we have the Indian Constitution comprises of A 395 articles, 22 parts and 12 schedules. B 371 articles, 21 parts and 11 schedules. C 372 articles, 20 parts and 7 schedules. Or D 381 articles, 23 parts and 8 schedules. Option A is correct here. So next guys, लास्ट के 5 क्वेश्चंस बचे हैं अब, और इनके आंसर जो है मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। यू आर गोइंग टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको बताऊंगी, और ये हम हर वीडियो में करेंगे। 5 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, आपको अपनी नॉलेज टेस्ट करनी है और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, और नेक्स्ट वीडियो में चेक करना है कि हाँ आपका ऑप्शन जो है करेक्ट था या नहीं। सो लेट्स सी द 5 क्वेश्चंस। फर्स्ट इज फ्रॉम विच ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज़। कौन सी कंट्री से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ अडॉप्ट करी गई हैं। ए USA, बी कनाडा, C USSR, that is Russia, D UK. Next question is the preamble enriches certain ideals that were first spelled out in A. The speech by Jawaharlal Nehru on the banks of Ravi when he called for Purna Swaraj. B. The Nehru Report. C. Resolution adopted as at Karachi session of the Indian National Congress. D. The objective resolution adopted by Constituent Assembly. इसका आंसर भी गाइस कमेंट बॉक्स में प्लीज़ राइट डाउन, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स इज A. DPSP, B. फंडामेंटल राइट्स, C. प्रीएम्बल और D. सिटीजनशिप। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। A. A written and rigid constitution. B. An independent judiciary. C. Vesting of residuary powers with the center. Or D. Distribution of powers between the center and the states. Next we have the Indian constitution is regarded as federal, B. Unitary, C. Parliamentary और D. Federal in form and unitary in spirit. So guys, इन सब के जो हैं आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो MCQs होंगे वो होंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स और DPSP के ऊपर। सो प्लीज़ पढ़कर आइएगा वो टॉपिक और अपनी नॉलेज टेस्ट करिएगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर दिस सेशन गाइज, प्लीज़ शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। योर सपोर्ट इज़ नीडेड हेयर, प्लीज़ सपोर्ट गाइज and subscribe our channel and press the bell icon to get the notification of further videos. Thank you.